إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہو. رب کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین، ایک لمبی مدتوں کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق اور آپ سب کی پیار و محبت کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو ملاقات کا یہ شرف حاصل ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ خوشی کی سعادت، یہ ساعت اور یہ لمحہ، یہ گھڑی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. آمین. حضرات جمعہ، محترم میری اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، ہم اور آپ چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، گھر کے تمام افراد اس آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے، آنے والے مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے پورا گھر تیاری میں جٹ جاتے ہیں، تیاری میں لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارا اور آپ کا مہمان جب ہمارے گھر آنے کی
خبر ہم ملتی ہے، خبر سنتے ہیں تو پورا گھر اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو کس قدر اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے، کیسے استقبال کرنا چاہیے، کیسے خیر مقدم کرنا چاہیے، اسی تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جہاں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا ہے، ماہ رمضان کو پا لینا ہے۔ اور یہ مہینہ کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں خیر کا کام جو کرتے ہیں، نیکی کا کام جو کرتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ہر سال رمضان کے مہینے میں دہرائی جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ماہ رمضان میں جو نیکی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے، جو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بلی کا 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آیا، اور بیک وقت دونوں نے اسلام قبول کیا۔ دونوں میں سے ایک عبادتوں میں بہت محنت کرتا تھا، دونوں میں سے ایک عبادتوں میں بہت محنت کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا اور اس نے شہادت حاصل کر لی۔ جبکہ دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ دونوں شخص وہاں موجود ہیں۔ جنت میں اتنے میں جنت سے ایک آدمی آیا، اور جو بعد میں انتقال ہوا تھا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جنت سے ایک اور آدمی نکلا، اور جو پہلے شہادت پا کر کے 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا، ان کو جنت میں جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر وہ نکلا اور مجھ سے کہا کہ اب تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں نے یہ خواب صحابہ کرام کے درمیان رکھا، صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا، تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، اور یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس بات پر تعجب کرتے ہو، تمہیں تعجب نے کس بات پر ڈالا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ تعجب کی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک عبادتوں میں زیادہ محنت کرتا تھا، جہاد کیا اور شہید ہو گئے، دوسرا اس کے بعد 1 سال بعد انتقال ہوا اور وہ فوت ہوا، تبھی موت ہوئی ان کی، لیکن جنت میں پہلے جا رہا ہے، تو یہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کہ کیا یہ دوسرا جس نے شہادت حاصل کی ہے اس کے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا، قالوا بلا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 سال تک تو زندہ رہا۔ فادرک رمضان فصامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تک زندہ رہا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے۔
फसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फिस्सना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना पाया, रोजे रखा और 1 साल तक इन्होंने इतने इतने सजदे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इन्होंने रोजा रखा, इन्होंने नमाज पढ़ी साल भर? सहाबा इकराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्द। इन दोनों के दरमियान जो शहादत पाई है, जो 1 साल बाद इंतकाल हुआ है, इन दोनों के दर्जात के दरमियान आसमान और जमीन का जितना फासला है, इससे भी ज्यादा इनके दर्जात में फर्क है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हम और आप हर रमजान ये सुनते हैं कि रमजान में नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा है। ये रमजान के महीने के एतबार से अगर देखें तो ये बहुत ही मामूली है, ये बहुत कम है। इस हदीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक की शहादत हुई, दूसरा 1 साल तक जिंदा रहा और उसने रमजान को पाया, रोजा रखा, साल भर नमाजें पढ़ी और वो जन्नत में पहले जा रहा है। मेरे भाइयों, यह है माह रमजान मुबारक की फजीलत, मकाम और मर्तबा। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिला उज़्र शरी के रमजान की रोजा नहीं रखते हैं, नाकदरी करते हैं, रोजा को जानबूझ करके छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, इतना मामूली महीना नहीं है, ये इतना मामूली महीना नहीं है कि आम महीनों की तरह हम इसको गुजारें। हमें इसमें क्या करना है, इसकी अजमत क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है। एक दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पर हज को जा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हज के लिए निकले। रास्ते में खातून मिली, अंसारिया खातून, जिसका नाम उम्मे सिनान कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम हमारे साथ हज के लिए क्यों नहीं जाती हो, किसी ने तुम्हें रोका है? उस खातून ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास 2 ऊंट हैं, एक ऊंट में मेरा बेटा और मेरा शौहर आपके साथ हज के लिए निकल रहे हैं, दूसरा ऊंट है जिससे मैं अपने जो बच्चे घर में है उसके लिए पानी और अनाज वगैरह ढो करके लाती हूँ। ये मजबूरी है, ये उज़्र है, जिस वजह से मैं आपके साथ हज के लिए नहीं जा पा रही हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिरी, ऐ खातून सुन लो, जब रमजान का महीना आ जाए तो तुम उम्रा कर लेना। फ़इन्ना उम्रतन फ़ीह तुअदिलु हज्जा, इसलिए कि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर अज्र सवाब है। जबकि बुखारी की रिवायत के अंदर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जतन मई, रमजान में उम्रा करना ऐसा ही है गोया कि उसने मेरे साथ हज किया है। अल्लाहु अकबर। रमजान मुबारक में उम्रा करना एक तो हज के बराबर अज्र सवाब है, और दूसरी बुखारी की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ हज करने के बराबर अज्र सवाब है। अल्लाह अकबर। ये मकाम और मर्तबा है माह रमजान का। आप दूसरे 11 महीने में उम्रा कर ले, लेकिन जो रमजान की बरकत है, इसकी जो मकाम और मर्तबा है, वो 11 महीने इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का महीना आमद है, शाबान रुखसत हो रहा है, हम इसकी इस्तकबाल कैसे करें? मेरे भाइयों, आम तौर पर देखा जाता है, मुशाहिदे की बात है, हफ्ता दिन पहले से बहुत सारे लोग रमजान मुबारक की सहर अफ्तार के लिए माकुलात मशरूबात की तैयारी में लग जाते हैं, सहर अफ्तारी के इंतजामात में लग जाते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग हैं जो घरों को, दुकानों को, मकानों को, मस्जिदों को सजाने में लग जाते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिसाब व किताब में लग जाते हैं, हमें ज़कात निकालने हैं, इतना ज़कात हमारे ऊपर फर्ज हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमजान के मसाइल जानकारी में लग जाते हैं। मेरे भाइयों, हम रमजान का इस्तकबाल
बहुत सारे लोग बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। रमजान को खराब करने के लिए शयातीन सिफत इंसान हमारे दरमियान वो नहीं चाहता है कि रमजान की बरकतों को हासिल करें, इसलिए बिलखुसूस रमजान के मौके पर नए नए सीरियल्स, नए नए मूवीज वो रिलीज करता है और खास खास औकात में उसको शो करता है, उसको रिलीज करता और दिखाता है। मेरे भाइयों, उनको पता है कि रमजान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, मरदूद जिनों को जकड़ दिया जाता है, लेकिन जो इंसान जो खुद जिनके अंदर शैतान भरा हुआ होता है, ये शैतानियत भरे हुए होते हैं, वो जगाया जाता है। बिलखुसूस खास खास औकात में नमाज का टाइम हो, अफ्तारी का टाइम हो, तरावी का टाइम हो, ऐसे औकात में ऐसी ऐसी नई नई चीजें टेलीविजन के अंदर आता है कि हम अपनी बरकतों के वक्त को उन चीजों में जाया और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत होशियार होकर के बहुत एहतियात तरीके से अपने तमाम तर नाफरमानी और गुनाह के कामों से अपने आप को बचाते हुए रमजान मुबारक की सआदतों से हमें और आपको फायदा उठाना चाहिए। मेरे भाइयों, जब चांद दिखता है, रमजान की पहली रात आती है, हमें क्या करना चाहिए? हमारा इस्तेकबाल हमें इस तरह करना चाहिए कि चांद देखने के बाद क़यामुल लैल का एहतमाम करना चाहिए, जिसको हम और आप नमाज तहज्जुद कहते हैं। आम दिनों में नमाज तहज्जुद है, रमजान में तरावी है, क़यामुल लैल है, क़याम रमजान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, नमाज तरावी पढ़ी, उसकी अगली गुनाहें माफ कर दी जाती है। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो सगायर गुनाह हुए होते हैं, साल भर के गुनाह बख्शे दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, ये खुश नसीबी किसके लिए है? इस पर हमें और आपको गौर करना है। जिसने नमाज तरावी पढ़ी, उसके लिए साल भर के सगायर गुनाह बख्शे दिए जाते हैं। अब हम में से कितने किस्म के लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, ये फैसला हमें और आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ही करीब से मुशाहिदे की बात है कि हमारे दरमियान नमाज पढ़ने वाले कई तरह के लोग हैं, नमाज तरावी पढ़ने वाले कई तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि वो बिल्कुल बड़ी लगन के साथ पहली तरावी से लेकर के आखिरी तरावी तक वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इमाम के पीछे रह करके मुकम्मल कुरान खुशू खुजू के साथ सुने और नमाज को अदा करें। ये बहुत ही खुश नसीब लोग हैं। हमारे दरमियान कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हर साल खुतबा में दुरूस में कहा जाने के बाद भी उनका रवैया यही रहता है कि उनको पता है कि 8:30 बजे जमात है, 8:45 बजे जमात है, लेकिन उनको अपने घर से मकान से टाइम दे करके निकलना है ताकि 2 रकात 4 रकात उनके निकल जाए। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं और बड़ा अफसोस होता है, जिन नौजवानों के हाथों में मुस्तकबिल है, जिनको मुस्तकबिल को संवारना सजाना है, जिनके हाथों और कंधों में ये जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल इनके हाथों में दिए जाए, और ऐसे 18, 20 साल 25 साल के नौजवानों को बहुत करीब से मैंने देखा है कि नमाज तरावी के अंदर तरावी हो रही होती है और ये पीछे मोबाइल में लगे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे दरमियान अपने ही बच्चे हैं, अपने ही भाई हैं, अपने ही लोग रहते हैं और अपने ही लोग इस तरह कर रहे हैं। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिजी की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा मअल इमाम, जिसने इमाम के साथ नमाज तरावी पढ़ी, हत्ता यंसरिफा, यहां तक कि नमाज मुकम्मल हो गई, कुतिबा लहू क़यामुल लैला, उसकी पूरी रात कयाम के बराबर अज्र सवाब लिख दिया जाता है, जिसने इमाम के साथ कयाम किया। अब मेरे भाइयों, वो मेरे नौजवान साथी गौर करें, जो हर रमजान में
बिलखुसूस इशा की नमाज में लेट आते हैं और लेट आकर के अलग एक जमात बना करके आप नमाज पढ़ते हैं, आप तो इस फजीलत से महरूम हो रहे हैं। आप वक्त दे करके भी, मस्जिद में आकर के भी इस फजीलत को नहीं पा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के साथ कयाम किया उसके लिए पूरी रात कयाम का अजर लिखा जाता है। हम कितने बदनसीब हैं, हम कितने बदनसीब लोग हैं। रमजान का महीना पाने के बाद नमाज तरावी हो रही है और उधर हम गब्बाजियों में लगे हुए होते। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। रमजान का इस्तिकबाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों, अभी से इरादा कर लें, आइए जरा हम ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी, तहज्जुद, क़यामुल लैल कैसे आप करते थे। आज हम लोग 1 घंटा, 1.25 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, इसको भारी और बोझ समझते हैं। आज तो हाफिज साहब ने लंबा खींच दिया है, लंबी नमाज पढ़ा दी है। मेरे भाइयों, ये हमारी सोच है, ये हमारी गलत फहमी है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात देखा कि आप नमाज के लिए खड़े हुए। तलहा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं भी आपके साथ खड़ा हो गया। इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक्तदी मैं, मेरे दाएं तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाएं तरफ मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद के अंदर, क़यामुल लैल के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत की। सूरह फातिहा की तिलावत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद सोचा, हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने सोचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जब सूरह बकरा की तिलावत शुरू की तो हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु दिल में सोचते हैं कि हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू में चले जाएं। मेरे भाई, उस हदीस को दिल दिमाग में बैठा करके लेकर जाएं और रमजान के इस्तिकबाल ऐसे करें। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 आयतें पढ़ने के बाद तिलावत जारी रखी और तिलावत करते करते सूरह बकरा के आखिर में पहुंच गए। मैंने सोचा कि अब तो राहत मिलेगी, मुझे अब तो राहत मिलेगी। सूरह बकरा खत्म करने के बाद सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। मेरे भाई, सूरह बकरा हम और आप जानते हैं 2.25 पारे के करीब ये सूरा है। फिर उसके बाद सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दिए और सूरह निसा पढ़ते पढ़ते सूरह निसा मुकम्मल करने के बाद सूरह आल इमरान की तिलावत शुरू कर दी। अब सोचिए, जरा समझिए, गौर कीजिए। सूरह निसा पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की तिलावत कर दी। सूरह आल इमरान की मुकम्मल तिलावत करने के बाद रुकू में गए। हम और आप आज बर्दाश्त कर पाएंगे? हम और आप बर्दाश्त कर पाएंगे? और ये 8 रकात में नहीं, 1 रकात की बात है। 1 रकात में 3 लंबी लंबी सूरतों की तिलावत की, सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह आल इमरान। कुरान को देखेंगे खोल करके तो पता चलेगा कि ये लगभग तकरीबन 5.25 पारे की सूरा है। इतनी तीनों सूरे, इतनी लंबी क़िरात के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ 1 रकात 3 से 4 रुकू पढ़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुकू पढ़ा जाता है ज्यादा से ज्यादा, और हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरे उन नौजवानों से मैं कहूंगा कि रमजान का इस्तकबाल आप नमाज तरावी में बिल्कुल तकबीर उला से करें और अपने अंदर कमजोरी, सुस्ती लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये ढूंढते रहते हैं कहां जल्दी तरावी होती है, वहां जाएंगे। जो शताब्दी की स्पीड में कुरान पढ़ता है वो इमाम अच्छा है। ऐसे भी लोग हमारे दरमियान, वहां जल्दी पढ़ाई जाती है, जल्दी होती है, वहां चलो। मेरे भाइयों, ये कुरान के साथ खेल है, मजाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कुरान ठहर ठहर के पढ़ने का आया है।
अल्लाह ताला ने कहा कि आप ठहर ठहर करके कुरान को पढ़ें। इसलिए मेरे भाइयों, पिछले जो कुछ हुआ है उसको भूलिए। आने वाले जो दिन रमजान का है, इनका इस्तकबाल चूंकि क़यामुल लैल से किया जाता है, नमाज तरावी है, फिर उसके बाद शहरी का मामला आता है, तो नमाज तरावी को नमाज तरावी की तरह अदा करें। बहुत दिन हो गया है, यहाँ जितने लोग नीचे हैं, ख़वातीन हैं, ऊपर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह क्या इस साल नमाज तरावी को उसी तरीके से अदा करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है। मेरे वो नौजवान से मैं कहूंगा जो मेरे अपने हैं, करीबी हैं, जो पीछे बैठते हैं, और कहाँ बैठते हैं मालूम है, कई बार चूंकि मैंने देखा, मेरी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को हर मुमकिन मैंने कोशिश किया है कि इनकी जहां जहां गलती है उनकी इस्लाह करूं। जमात के लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बीच में नमाजी तरावी के दौरान मैं निकल जाया करता था, ऊपर जाता था। हमारे कुछ भाई, नौजवान, बड़े छोटे दोनों शामिल इसमें, एक रकात जब चूंकि एक पहली रकात में लंबी किरात करते हैं तो वो पीछे बैठ जाते थे। मस्जिद जब ये इस तरह होलिया नहीं था, इस तरह काम नहीं हुए थे, 2 कूलर रखा हुआ था। यही पीछे की बात है, जब मैं शुरू में आया था सिर्फ नीचे भरता था, ऊपर कुछ आदमी जाते थे, तो उस टाइम कूलर के पीछे चक्कर में लोग पीछे बैठे हुए रहते थे, वजू खाने की तरफ भाग जाते थे। ये टाइम की बर्बादी, और हम सोचने की हमारी होशियारी है। नहीं मेरे भाइयों, ये हमारी बदबख्ती है, ये हमारी बदनसीबी है। तो इस तरह मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अपने वक्त को बर्बाद ना करें और नेकियों के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ माह रमजान का इस्तेकबाल करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही गई है गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। आलमीन हम में से बहुत सारे लोग दीन से दूर है, अल्लाह दीन के करीब कर दे। आलमीन हम में से बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह रोजी के मसाइल के अंदर खैरत और बरकतों का नुज़ूल फरमा। आलमीन हम में से जो बीमार है तो उन्हें शिफाई कामिला आजिला अता फरमा। आलमीन हम में से बहुत सारे लोग अभी भी 5 टाइम नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, अल्लाह तो उनको पाबंदी के साथ बाजमात 5 वक्त पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। आलमीन हम सबको माह रमजान की बरकतों को लूटने की हम सबको ये नसीब, ये तौफीक नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।